दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिटनेस मंत्रा फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म इज ए कंडीशन वेयर थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन्स or which are essential for various body functions. Here are some functions, common symptoms of hypothyroidism I will explain, like weight gain. So despite of normal diet, people with hypothyroidism may experience with weight gain due to slower metabolism. Means BMR गिर जाता है और हमें वेट गेन होने लगता है। थोड़ा खाने पर भी हमें वेट गेन होने लगता है। दूसरा, फटीग एंड लेथार्जी। लो थायराइड हार्मोन कैन कॉज फटीग, एक्सरसाइज रूटीन और इवन पर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में हमें थकान महसूस होती है। एंड तीसरा, कोल्ड इंटॉलरेंस। सम पीपल विद हाइपोथायराइडिज्म में feel cold even mild temperatures, and which can affect appetite and eating habits. The fourth one is dry skin and hair. Hypothyroidism can cause dry, rough skin and brittle hair, leading to decrease in overall appearance. Fifth one is constipation. Low thyroid hormone can slow down digestion and leading to constipation, bloating and gases. Loss of appetite is there in some people, and thinning of hair. Hypothyroidism cause thinning of hair loss, particularly on scalp and even on eyebrows. So these symptoms can be improved, or we can improve with diet in hypothyroidism. हम चीज़ों को थोड़ा सा फर्क दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं अगर हम कुछ डाइटरी चेंजेस अपनी डाइट में लाएं, लाइक इंक्रीज आयोडीन इंटेक। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। इंक्लूड आयोडाइज्ड salt, seafood and dairy product in your diet, like eating selenium rich food. Selenium help convert thyroid hormone into their active form. Include selenium rich food like Brazil nut, fish, turkey, walnuts and fruits in your diet. We can take vitamin tablets rich in calcium, selenium also, and choose zinc rich food. Zinc is essential for immune system and thyroid health, because normally hypothyroidism is an autoimmune disease. So for including including zinc rich food like oyster, beef, like walnuts, and again almonds and other foods in our diet. We can increase zinc in our diet. Incorporate omega-3 fatty acids that are very important for thyroid. Omega-3 acids help reduce inflammation and promote overall health of. Find that fatty fish, flax seeds, walnuts and Brazil nut. Then we have to avoid few things in our diet. कुछ चीज़ें हमें खाने से थायराइड में नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले है सोया प्रोटीन। अवॉइड सोय एंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल। सोया एंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल लाइक broccoli, cauliflower, kale can interfere with thyroid function. Soya beans, most important is soya beans, soya oil, that hamper the thyroid function, thyroid hormone chain को गड़बड़ करता है। So cooking these vegetables can reduce their negative rays. We have to, if we want to eat them, then we have to eat well cooked broccoli or cauliflower, etc. Avoid soya oil, soybean and other things. Then stay hydrated. They take plenty of oral fruits, nimbu pani, nariyal pani and fruits, and consider a gluten-free diet. That is very helpful in few peoples who may also have gluten intolerance, celiac disease. Gluten-free diet may help to alleviate symptoms. And most important is कि हम रेगुलरली अपना थायराइड चेकअप कराते रहें। अगर नॉर्मली अगर हमें कुछ सिम्टम्स ऐसे लगते हैं, लेथार्जी, फटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, हमें तुरंत अपना एक फ्री थायराइड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि वो एक सब क्लिनिकल रेंज मीन्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 6.5 है, तो हम डाइट से, एक्सरसाइज से, योगा से
इन चीज़ों को कोशिश करें और फिर आफ्टर 6 वीक्स हम दोबारा से रिपीट कराएं। साथ ही में एक एंटी टीपीओ टेस्ट कि हमें, क्योंकि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म मोस्टली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कि इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज़ बनी है क्या। मीन्स अगर एंटीबॉडीज़ बनी है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे हमारी थायराइड को, ग्लैंड को डैमेज करेगी, तो हार्मोन प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे सिम्टम्स आने पे नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, अपनी थायराइड ग्लैंड को फ्री थायराइड हार्मोन टेस्ट कराएं अपना, और उसे अगर थोड़ा सा भी बड़ा निकलता है तो नेक्स्ट 6 वीक्स बाद ही उसे दोबारा से ऑब्जर्व करें। और अगर वो 8 से ज़्यादा निकलता है और बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम थायराइड के लिए सिंपल एक गोली जो हम खाली पेट खानी पड़ती है, जो हार्मोन्स के लिए पिल्स ही होती है सेम, और वो इस थायराइड ग्लैंड को मैनेज करने में आसान रहती है। उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक जो हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है वैसी ही एक टैबलेट बनी है जो हम सुबह खाली पेट लेते हैं। खाली पेट मीन्स हम सोते उठते ही सबसे पहले उस गोली को लें, उसके 40 मिनट 1 घंटे बाद ही हम कुछ खाएं, और बहुत एंटासिड या कैल्शियम या एसिडाइजिन सिरप उसके साथ ना लें, जिससे उसके एब्जॉर्प्शन में कोई परेशानी आए। थायराइड इजीली कंट्रोलेबल है, ऐसा कोई बहुत नुकसान नहीं करती है, पर हमें समझना होगा कि अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म में हमारा TSH ये बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें हमारी बॉडी में डिसबैलेंस होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है, वजन भी बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि ऐसे सिम्टम्स आने पर हम नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाएं और उसे दिखाएं, थायराइड को समझें, जानें और उसको ठीक से रखें। धन्यवाद।